Hello viewers. In the first part of respiration MCQs, we covered the 50 question. Next questions we will cover in this video. Starting with question number 51. RQ stands for. RQ stands for. R means respiratory, Q means quotient. So RQ stands for respiratory quotient. So answer is B. RQ of carbohydrates is RQ of carbohydrates is 1. So option of this question is A. RQ of anaerobic respiration is 0, infinity, less than 1, more than 1. RQ of anaerobic respiration is infinity because in anaerobic respiration there is no ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एंड CO2 इज रिलीज और RQ क्या है CO2 रिलीज डिवाइडेड बाय O2 कंज्यूम तो O2 कंज्यूम हो नहीं रहा तो CO2 एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 द वैल्यू कम्स टू इंफिनिटी व्हेन अमाउंट ऑफ CO2 टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर in photosynthesis become equal to the amount of CO2 released in atmosphere in respiration कि जो photosynthesis में CO2 प्लांट लेता है उसके जो अमाउंट है becomes equal to जो respiration में वो एक्सेल कर रहा है तो ऐसा पॉइंट जिस पे वो दोनों CO2 का वॉल्यूम इक्वल हो जाए that point is called final point, compensation point, balance point and equal distribution. तो this point is called compensation point. जब photosynthesis में CO2 लेना और respiration में CO2 छोड़ने की amount equal है तो that point is known as compensation point. So option is B. Alternative pathway for respiration is pentose phosphate pathway. Which of the following processes is common for aerobic and anaerobic respiration? ऐसी प्रोसेस जो कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में दोनों में प्रेजेंट है दैट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस. ये एरोबिक में भी है और एनारोबिक में भी. एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनमें से फर्मेंटेशन, PP पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल. सो ऑप्शन इज ऑप्शन ए फर्मेंटेशन. How many ATPs are formed during dephosphorylation in glycolysis? Dephosphorylation के during glycolysis में कितने ATP synthesis होते हैं? Dephosphorylation जो substrate level phosphorylation होता है उसमें कितने ATP synthesis होते हैं? 4 ATPs. So option is B. RQ respiratory quotient of oxalic acid. Oxalic acids क्या हैं? Organic acids हैं. Organic acids का जो RQ होता है that is more than 1. तो that's why this option is B. 4. Which process occurs in the cytosol? Out of this photosynthesis chloroplast में होगा, Krebs cycle mitochondria में, oxidative phosphorylation inner mitochondrial membrane या क्रिस्टी में होगा. सो बचा क्या? ग्लाइकोलिसिस. तो ग्लाइकोलिसिस किसमें? साइटोसोल में. सिंथेटिक प्रोसेस ऑफ सेल कम्स अंडर. जो सिंथेटिक प्रोसेस है सेल्स की दैट कम्स अंडर द टर्म एनाबोलिज्म. And next question is degradation process of cell referred under the catabolism, and both of these catabolism and anabolisms combinedly known as metabolism of the cell. Pyruvic acid is CH3COOH. CH3CHO is acetaldehyde. CH3CH2OH represents as it is an alcohol and from this alcohol is ethanol. Respiratory substances are substances available from air. No. Nutritive substances present in the food. Yes, these are the nutritive substances present in the food. For aerobic respiration it is essential. For aerobic respiration what is essential? Oxygen. Acetaldehyde is formed from pyruvic acid if it is removed. Pyruvic acid से acetaldehyde की formation कब होगी? क्या remove हो? H2 no, CHO no, 2OH no, CO2 because यहाँ फॉर्मूला में देखो इसका फॉर्मूला है CH3COOH. तो यहाँ से अगर हम एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन निकाल देते हैं तो क्या बच जाता है? CHO. और ये फॉर्मूला किसका है? एसिटाल्डिहाइड का. तो क्या रिमूव हुआ इसमें से? CO2.
Respiration type occurring in human red blood corpuscles is anaerobic respiration occurs in the RBC. Next is yeast respires anaerobically due to lack of mitochondria. Respires aerobically if it got oxygen, otherwise perform alcoholic fermentation. So if oxygen is present, then yeast will respire aerobically, otherwise it perform the alcoholic fermentation. The end product of glycolysis of a glucose molecule is, glycolysis के end products क्या हैं? Pyruvic acid है, NADH2 है, ADP no, pyruvic acid 2H plus no, 2 electrons and 4 ATP. पायरुविक एसिड 2 NADH2 ATP, वहाँ पे सिंगल ATP की फॉर्मेशन नहीं, नेट गेन में 2 ATPs हैं. सो एंड प्रोडक्ट इज 2 पायरुविक एसिड 2 NADH2 एंड 2 ATPs. द एंजाइम रिक्वायर्ड टू फॉर्म एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड से एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन के लिए एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड होता है? पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज. बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है CO2 का मॉलिक्यूल रिमूव्ड होता है. फोस्फोराइलेशन इज जर्नली. फोस्फोराइलेशन जर्नली अगर हम बात करते हैं तो ले उसमें क्या है, वो सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड फॉस्फोर्स. फ्रुक्टोज 1,6-phosphate splits into PGAL and DHAP. Phosphoglyceraldehyde 3-phosphate glyceraldehyde and DHAP dihydroxyacetone phosphate. Oxidative phosphorylation occurs in क्रिस्टी, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती हैं क्रिस्टी, उन पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा. मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम फ्यूमेरिक एसिड. फ्यूमेरिक एसिड से जब मैलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी तो वो किससे होगी? बाय एडिशन ऑफ CO2 नो, बाय एडिशन ऑफ H2O यस. हाइड्रेशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस देयर. If CO2 and 2H are removed from pyruvic acid, it is formed. अगर वहां से CO2 रिमूव हो जाए और 2H रिमूव हो जाए, then it will form. क्या फॉर्म, किसकी फॉर्मेशन होगी? It will form acetate. It is byproduct of the Krebs cycle. Krebs cycles का byproduct ऑक्जेलो एसिटेट उसमें मूव कर रहा है. एसिटाइल को एंजाइम में उसमें फॉर्म नहीं हो रहा है, एसिटेट फॉर्म नहीं हो रहा, तो बायप्रोडक्ट क्या हुआ? सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि अनदर एनाबॉलिक रिएक्शंस में भी यूज होता है. 1 ATP इज फॉर्म्ड व्हेन. ATP किस स्टेप में फॉर्म होगी? सक्सिनिक टू फ्यूमेरिक एसिड नो, अल्फा कीटोग्लूटारिक टू सक्सिनाइल कोएंजाइम में नो, सक्सिनाइल कोएंजाइम में टू सक्सिनिक एसिड यस. ATP इज फॉर्म्ड इन दिस स्टेप ऑफ Krebs cycle. Respiration quotient and compensation points are not related, inverse to each other, same, applicable to all organisms. These both are not related to each other. RQ is 1. Respiratory quotient 1 कब होगा? Is 1 कब होगा? The multiplication O2 consumed and O2 released CO2. No, amount of O2 consumed and CO2 released are same. Yes, because RQ क्या है? Amount of CO2 released divided by amount of O2 consumed. तो अगर दोनों amounts equal होंगी then ratio will be 1. If RQ is 0.7, the substance needs. अगर RQ 0.7 है तो it means क्या है? जो डिवाइड करने वाला है वो क्या है? ज़्यादा है. तो वो ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन. सो रेस्पिरेशन के लिए सब्सटेंस को मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है अगर RQ 0.7 है तो. द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ ऑल रिएक्शन ऑफ PPP पाथवे इज साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्रिस्टी, थाइलाकोइड मैट्रिक्स. So all the reactions of pentose phosphate pathways occur in the cytosol. The process occurring during Krebs cycle is, Krebs cycle में इनमें से कौन सी प्रोसेसेस हो रही हैं? डिकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन यस हो रही हैं. डिकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजिनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, ये तीनों रिएक्शंस उसमें हैं. तो ऑप्शन इज बी. ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस वाटर इज रिलीज फ्रॉम. ग्लाइकोलिसिस में वाटर कहाँ से रिलीज होता है? किस सबस्ट्रेट से? दैट इज फ्रॉम 2-phosphoglyceric acid. When human muscle contracts, human muscle जब contracts होंगी, respiration does not occur,
Anaerobic respiration occurs if supply of oxygen is insufficient. Anaerobic respiration never occurs. Always anaerobic respiration. नहीं, जब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट, और उस टाइम पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से हमें फटीग भी महसूस होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दैट लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स. द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ 3 प्रोसेसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 प्रोसेसेस का करेक्ट सिक्वेंस, फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, एंड आफ्टर दैट ऑक्सीडेटिव phosphorylation. So option A is correct. During pentose phosphate pathway, RUBP is formed in. पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में RUBP कहाँ फॉर्म्ड होगा? साइटोसोल में, बिकॉज जो कंप्लीट साइकिल है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की वो साइटोसोल में होती है, तो दैट्स व्हाई RUBP इज फॉर्म्ड इन साइटोसोल. The number of ATP molecule formed in oxidative phosphorylation of 1 glucose molecule. 1 glucose molecule का जो oxidative phosphorylation होगा तो उस टाइम पे नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे? दैट विल 34, बिकॉज हेयर आस्क्ड अबाउट ओनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन वाले नहीं पूछे हुए हैं. द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ 1 पायरुविक एसिड. यहाँ पे क्या पूछा था? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 34. 1 पायरुविक एसिड में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कितने बनेंगे? 14, बिकॉज 1 कहाँ पे किससे बनेंगे? क्योंकि 1 पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा तो क्या बनेंगे? 4, तो वहां पे NADH बनेंगे और एक FADH2, तो 4, एक NADH से 3 बनेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, और एक FADH2 से 2 ATPs बनेंगे, तो 12 प्लस में 2 14. तो इस टाइप से क्या है? 14 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे 1 पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से. हाउ मच एनर्जी स्पेंट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ 1 पायरुविक एसिड टू द माइटोकॉन्ड्रिया. एक पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करना है तो उसके लिए 1 ATP एनर्जी यूज होगी. इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होगी बिकॉज इट्स एनाएरोबिक. ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती बिकॉज इट्स रेस्पिरेशन. CO2 is released. Respiration है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड is released. So option is C. Krebs cycle takes place in. Krebs cycle कहाँ होगी? Krebs cycle as always takes place in the mitochondria. By electron transport series, ATP synthesis occurs on. ATP synthesis कहाँ होगी? Outer membrane of mitochondria? No. Inner membrane of mitochondria? Yes. ATP synthesis takes place in the cristae that are the foldings of the inner membrane of mitochondria. Energy currency of the cell is. Energy currency of the cell is ATP, adenosine triphosphate. Complete oxidation of glucose into pyruvic acid with several intermediate step is. ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है पायरुविक एसिड में with several intermediates, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? That is known as glycolysis. When a molecule of pyruvic acid is subjected to anaerobic oxidation and form lactic acid, this is, वहाँ क्या होगा? जब एक पायरुविक एसिड एनाएरोबिक ऑक्सीडेशन के थ्रू लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो लॉस ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल्स, 6 ATP, 2 ATP एंड 4 ATP. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दिस एनाएरोबिक एस्पिरेशन, देयर इज अ लॉस ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल्स. Conversion of pyruvic acid into ethyl alcohol is facilitated by the enzyme. पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो ये इस किसके थ्रू? डीकार्बोक्सिलेज एंड डीहाइड्रोजनेज. पहले डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी और फिर डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन. सो ऑप्शन इज सी. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर फैटी सब्सटेंस और फैटी फैट्स इज. रेस्पिरेटरी फैट्स के लिए क्या होगा? दे रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन. सो ऑक्सीजन ज्यादा रिक्वायर होगी और जो CO2 रिलीज होती है वो कम, तो दैट्स वाई जो रेशियो होगा RQ होगा वो लेस देन 1 होगा. RQ फॉर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट इज. ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स के लिए RQ क्या होगा? दे रिक्वायर्ड इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एज CO2 रिलीज. सो RQ इज 1. An indispensable role in energy metabolism is played by. एनर्जी मेटाबॉलिज्म में जो रोल प्ले किया जाता है वो कौन सा है? सोडियम. नो. फॉस्फोरस. यस. फॉस्फोराइलेशन में जब एनर्जी की फॉर्मेशन होती है तो फॉस्फोरस वहां पे रिक्वायर्ड होता है.
इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी इज, इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ग्लूकोज। हम जब भी कई बार बोलते हैं ना एड भी आती है ग्लूकोन डीपीओ, तो उसमें भी क्या होता है? डी ग्लूकोज होता है। तो बिकॉज दैट गिव्स द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी मरीज होते हैं तो उनको बोलते हैं ग्लूकोज चढ़ा दिया, तो वो क्या है विंस में उसको दे देते हैं ताकि उसको डाइजेशन कमजोर हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि जो ग्लूकोज है उसको इंस्टेंट एनर्जी दे इसके सेल्स को फंक्शनिंग के लिए। सो ऑप्शन इज ए। थैंक्स। In the next video, we will continue with the some more questions, some more MCQs on the respiration. So keep watching. Thanks.